Warm welcome to whoever is watching this video. I'm Vijata and welcome to Classes by Vijata. And today we'll study routing. Routing is a part of production planning, which we are discussing from last videos, where we have discussed what is production system, what is process planning, how capacity planning is done, how process planning is done, how plant layout is being made, and how material handling is done. All the videos are available on the channel. You can check all these videos. And once we have decided what will be a plant layout, what will be the order of making our product, we need to decide the routing. Routing is basically the path to be followed by a product in order to get it converted from raw material to finished good. So I'm Vijata and welcome to Classes by Vijata. So what do you mean by routing? Routing may be defined as the selection of path which each part of the product will follow while being transformed from raw material to finished product. रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जो इंटायर ऑपरेशन का सीक्वेंस होता है, जो भी प्रोसेसेस एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड बनने के लिए जो भी प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, द ईच स्टेप जब आप उसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे सीक्वेंस को हम रूटिंग कहते हैं. रूटिंग स्पेसिफिकली मीन करता है the determination of the most advantageous path to be followed from department to department, from machine to machine, till the raw material gets converted into its final shape. Final product बनने से पहले जो एक रॉ मटेरियल है बिटवीन द डिपार्टमेंट, बिटवीन द मशीन, जो ट्रैवल करता है, उसमें से जो मोस्ट एडवांटेजियस पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ, द मोस्ट इकोनॉमिकल पाथ होगा, उसी को हम रूट कहते हैं उसका, और इस पूरे प्रोसेस को हम रूटिंग कहते हैं. तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन रूटिंग कर रहा होता है तो वहां पे कुछ की कंसिडरेशन है जिसको उसको ध्यान में रखने की जरूरत है. तो व्हाट ऑल आर दीज की कंसिडरेशन? द फर्स्ट इज द टाइप ऑफ वर्क टू बी डन ऑन प्रोडक्ट और इट्स पार्ट. जो भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें किस तरह का काम करना है, क्या काम है, व्हाट विल बी द सीक्वेंस. Second is operation required to do the work. What all operations one need to do while making that product, while converting that raw material into a finished good. What will be the sequence of operation required? What will be the sequence? Basically, we need to write down the correct sequence of operation to be taken care while converting this raw material into the finished good. When the work will be done, we need to write the complete TAT. That is turnaround time. What will be the turnaround time? What will be the time which unit will take to get converted from raw material to finished good? So for every step, what will be the TAT? What will be the turnaround time? It has to be specified. And the proper classification about the personnel required and the machine for doing the work. कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, जो डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क होगा वो कैसे होगा, कौन सुपरवाइज करेगा, कौन फंक्शन करेगा, कौन सा बंदा कौन सा काम उसके जिम्मे पे आता है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन होगा. एंड द मशीन्स, व्हाट विल बी द मशीन्स used during the process has to be identified and has to be, like, one has to finalize the machine what he or she needs to work upon while converting this raw material into the finished good. आप कौन सा मशीन, कौन सा टूल, कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे, कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, everything has to be determined beforehand. So these are the key consideration while doing routing of any process. So what are the different techniques? So basically there are 4 techniques of doing routing. 4 techniques ऐसे हमने लिख रखा है, लेकिन जो जनरली यूज करते हैं वो 3 टेक्निक ही होता है. जो 4th टेक्निक है उसको हम ज्यादातर यूज नहीं करते, तो वो क्या टेक्निक है हम लोग बाद में देखते हैं. पहले देखते हैं कि व्हाट आर द बेसिक टेक्निक यूज फॉर रूटिंग. तो देयर आर 4 टेक्निक्स. फर्स्ट टेक्निक इज रूट कार्ड. रूट कार्ड में दिस कार्ड ऑलवेज, यहाँ पे कार्ड होता है जिसको कि हर एक प्रोसेस ईच स्टेप्स में उसको हम कैरी करते हैं. एंड दिस कार्ड ऑलवेज accompanies विद द जॉब थ्रू आउट ऑल ऑपरेशंस. पूरे प्रोसेस में पूरा, जैसे मान लो कि किसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में देयर आर 5 स्टेप्स, तो ये 5 स्टेप्स तक, ये 5 स्टेप्स में
रूट कार्ड इसके साथ रहेगा, एंड इन ऑर्डर आपको जब काम करना है, यू नीड टू चेक द रूट कार्ड विच विल इंडिकेट द मटेरियल टू बी यूज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसका प्रोग्रेस कैसे कैसे आपको होना है, ऑपरेशंस कैसे कैरी आउट करने हैं, ये सारा कुछ आपके रूट कार्ड में लिखा होगा, और उस रूट कार्ड को देख करके ही आपको काम को आगे बढ़ाना है. In addition to this, details of the scrap, the good work produced are also recorded in root card. दूसरा टेक्निक जो होता है वो होता है वर्कशीट्स. वर्कशीट मेनली आप कह सकते हो एक तरह का एक्सेल शीट या एक तरह का चार्ट जो हम बनाते हैं, वर्कशीट्स बनाते हैं. वर्कशीट में इट कंटेन्स स्पेसिफिकेशन टू बी फॉलोड व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग, instructions regarding routing of every part with identification, number of machines and workplace of operation. पूरा स्पेसिफिकेशन होता है वर्कशीट में, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होगा कि आप कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये प्रोसेस कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप ये कैसे काम करेगा, हर एक स्टेप पे आपको कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं, वो इंस्ट्रक्शन का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लिखा होगा, आइडेंटिफिकेशन लिखा हो रहेगा हर एक एक्टिविटी का, हर एक मशीन का जो भी इस पूरे प्रोसेस में यूज होती है, कौन सा वर्क प्लेस आप यूज करेंगे, आपका वर्क स्टेशन कहाँ पे होगा, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड इन वर्कशीट. तो वर्कशीट जो होता है ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए नहीं होता, ये मेंटेनेंस के लिए भी होता है कि थ्रू आउट द प्रोसेस आपको मशीन को मेंटेन भी करना है. तो मेंटेनेंस भी है एक जो पार्ट है पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है मेंटेनेंस. तो आपको मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना है. तो वर्कशीट हो गया, रूट कार्ड हो गया. जो थर्ड टेक्निक है जो सबसे ज्यादा यूज होती है रूटिंग में, वो होती है रूट शीट. रूट शीट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ लाइक, ये भी एक तरह का वर्कशीट ही है, लेकिन ये वर्कशीट में क्या होता है, रूट शीट में हर एक ऑपरेशन को तो पहले हम स्पेसिफाई करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको बताया कि एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में आपको कन्वर्ट करना है. मान लो आपको गोल्ड रिंग बना दी है, आप एक ज्वेलर है और आपको गोल्ड रिंग बना रही है. तो गोल्ड रिंग आप वो कैसे बनाएंगे, आप जो गोल्ड है उसको पिघलाएंगे, मोल्ड करेंगे, उसमें शेप डालेंगे, उसमें जो भी आपको मान लीजिए डायमंड अटैच करना है, किसी भी तरह का स्टोन लगाना है या कुंदन करी करनी है, क्या भी चीज जो भी चीजें करनी है उसका आप एक प्रॉपर स्टेप्स लिखते हैं. तो वो जो पूरा प्रॉपर स्टेप्स आपने आइडेंटिफाई करे उसमें भी प्रोसेसेस होंगे. जैसे मान लीजिए आपको मोल्ड ही करना है, तो मोल्ड कैसे करना है, या आपको कुंदनकारी ही करनी है, तो ये कुंदनकारी कौन करेगा, कौन सा डिजाइन पैटर्न फॉलो होगा, कौन सा कलर फॉलो होगा, एवरीथिंग हैज टू बी स्पेसिफाइड. तो रूट शीट में हम क्या करते हैं कि डील्स विद स्पेसिफिक प्रोडक्शन ऑर्डर. फर्स्ट थिंग आपको स्पेसिफिक ऑर्डर बताना है, फिर हर एक ऑर्डर के लिए आपका अलग अलग इंडिविजुअल ऑपरेशन शीट बनेगा, एंड वन शीट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पार्ट और कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर. और ये जो ऑर्डर शीट बनेगा उसमें क्या क्या चीजें आपकी होनी चाहिए, पहली चीज तो होनी चाहिए नंबर एंड अदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर, symbol and identification of the parts होना चाहिए, number of pieces to be made, number of pieces in each lot, operation data which include list of operation on that part, department in which operation will be performed, कौन करेगा ये काम, कितना काम आपको करना है, कितना काम करके आपको छोड़ के इसे दूसरे को दे देना है. So everything has to be mentioned in this root sheet. मशीन कौन सी इस्तेमाल करेंगे, फिक्स सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, everything has to be mentioned in root sheet, and the rate at which job must be completed determined from the operation sheet. कितना टैट होगा, टैट टर्न अराउंड टाइम, कितने टाइम में ये काम खत्म होगा, एवरीथिंग हैज टू बी मेंशन्ड इन रूट शीट. तो ये तीन तरीके हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, उसमें रूट शीट सबसे ज्यादा पॉपुलर है. एंड द लास्ट वन इज मूव ऑर्डर. मूव ऑर्डर हम ज्यादातर प्रोडक्शन कंट्रोल में यूज करते हैं, रूटिंग सिस्टम में बहुत कम या नेवर, आप कह सकते हैं कि कभी भी हम यूज नहीं करते, बट इट इज अ टेक्निक ऑफ रूटिंग, इट कैन बी यूज्ड. So move order is prepared for each operation as per operation sheet, and on this quantity passed forward, scrapped and to be rectified are recorded. Mainly इसमें क्वांटिटी का हिसाब रखने के लिए हम मूव ऑर्डर यूज करते हैं कि हमने कितने क्वांटिटी बनाई, पहले हमने ऑर्डर करी थी, उसमें से कितना बना, कितना स्क्रैप हो गया, कितने को हम ठीक कर सकते हैं, क्या रेक्टिफिकेशन हो सकता है, डेविएशन कितना है, इन सब का हम रिकॉर्ड रखते हैं. तो मूव ऑर्डर इज अनदर टेक्निक. It is returned to the planning office when the operation is completed.
So these four are the techniques of routing. So thank you very much for listening to this presentation. And we are done with the routing system. If you have any doubt, any query, you can write to me at vijayata.rwc@gmail.com, or you can comment in the comment box. Thank you so much. And please do subscribe to my channel for more production and operation management videos. Thank you so much.